करूँ स्टार्ट? For our repair system, the MASH unit, there will always be casualties of war, and the war that is दीदी ये zoom क्यों नहीं war that is being waged in our body is no different in spite of our tremendous antioxidant defense system. The enemy gets through and damage lipids, proteins, cell walls, vessel walls, and even the DNA nucleus of the cell. Many research centers have now confirmed the existence of damage removal and repair system of all these oxidized damaged by free radicals, protein, cell wall, lipids, and DNA. Simply put, our body have sophisticated state of the art MASH unit. When I was young physician, I realized the strong possibility that I would be called up to be part of the MASH unit in the Vietnam War. During my training at the University of Colorado Medical School, most of the residents had been to Vietnam, and most of the intimates were on their way. But as it turned out, by the time I finished my internship, the war had pretty much ended, and the draft was no longer in fact. Though I never actually went to Vietnam, I remember the original movie MASH with all the wounded soldier being brought in by helicopter. The stressful, frantic surgeries that followed in attempts to man soldiers are still vivid in my mind. Do you know in the same scenario is happening every day inside our bodies? We have a sophisticated team of tri- triage nurses, anesthesiologists, and surgeons that are busy repairing the damage caused by the free radicals our body is producing. There is both a direct repair system and an indirect repair system within each of our body. We really don't know much about the direct repair system. However, it is well documented that it does exist. Most of our knowledge centers instead of the indirect repair system. पूरा फिनिश कर दूं. In the healthcare field, tri-age nurses are the ones who evaluate the patient to determine which patient in the most critical condition and will be seen by the doctor first. Extensive studies have revealed that the tri-age nurses in our bodies recognize damaged cell parts and then repair them. The body doesn't just patch these cells, it actually tears them down completely, and the rebuilds from scratch. Incredible. Is it not? It damaged proteins become brand new proteins made with recycled amino acid. The body repairs altered with fats and DNA in a similar manner. It is critical that you understand that body has an amazing built-in ability to heal itself. Okay, so thank you, Pooja. Can anyone explain? Before that, to recap, कल जो आए थे SPF कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद है ना? बताओ. If the SPF is 15, how do you calculate formula? 15 to 30. 15 into 20. 20. हाँ, मतलब जो भी 20 जो भी, 30 हाँ. जो भी टैनिंग का टाइम ले रहे हैं या सनबर्न की स्किन होती है, किसी का 15, किसी का 20 मिनट, ऑन एन एवरेज 20 मिनट. सो गुड. सबको याद है ना SPF कैसे कैलकुलेट करते? ओके,
Good. So yeah, क्या what is the understanding from what Pooja read? सबको समझ आ गया? मतलब it is like quite simple, ऐसा कुछ complicated नहीं है. Any doubt anyone has? इसका मतलब हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ फाइट चलती रहती है, जितने भी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, उनको उनका डिफेंस बन के सोल्जर्स की तरह दे कीप ऑन फाइटिंग. राइट. सो मतलब रोज बॉडी में अंदर एक वॉर चल रहा है और एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो उस वॉर को फाइट कर रहा है ना. मतलब हमको लगता है अरे क्या है, नॉर्मली तो है, बट इट्स इट्स सो पावरफुल थिंग्स आर गोइंग विद इन आवर बॉडी जो हम देख नहीं सकते. बट दैट इज व्हाई दे से ना ह्यूमन बॉडी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन इन दिस वर्ल्ड. मतलब गॉड्स गिफ्टेड, गॉड्स मैन्युफैक्चर्ड कह सकते हैं. सो डोंट नेवर टेक इट लाइटली. एंड जैसे बोला ना कि लास्ट लाइन में अमेजिंग बिल्ट इन एबिलिटी टू हील इटसेल्फ, इसलिए बोलते हैं कि जब आपको छोटी मोटी चीजें होती है आजकल, इवन बहुत सारे जो क्या बोलते हैं साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, दे आर टेलिंग कि अगर आपको छोटा से छोटा मतलब बुखार या कुछ जुकाम या ऐसी चीजें हैं, डोंट टेक मेडिसिन, लेट योर बॉडी हील, बिकॉज इट हैज दैट पावर ना. 3 दिन दो, अपने आप हील होगा. ट्राई इट आउट. पीपल नाउ डेज आर सो यूज टू टेकिंग दीज मेडिसिन ना, इमीडिएटली कुछ हुआ एंड मेडिसिन ले लिया. दैट्स लाइक सप्रेसिंग योर बॉडीज एबिलिटी टू डू समथिंग टू हील ऑन इट्स ओन. सो ट्राई करना नेक्स्ट टाइम. नेवर एवर टेक, मतलब जब तक जरूरत ना हो. ऑब्वियसली डॉक्टर इज देयर, सो लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, बट आई एम श्योर शी विल आल्सो अग्री कि मतलब इतनी पावरफुल चीजें हैं कि अपने आप में ठीक हो सकता है. इतना इतना तो हमारी बॉडी कर ही सकती है. सो इट इज लाइक जितना हम कम, जैसे कल पढ़ा था ना, ड्रग्स या एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे उतना ही आगे जाके सही रहेगा. अभी तो इट इज लाइक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, टाइप्स की, ले लिया और जल्दी से ठीक हो गए. बट लॉन्ग टर्म में इट विल डेफिनेटली कॉज लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड सिवियर इफेक्ट्स. सो या, प्रभ, यू वांट टू शेयर समथिंग? नहीं, इट्स ओके. वैसे तो Oh. नेचर मेन थिंग इज कि हम भी नहीं देते हैं, वी डोंट प्रिस्क्राइब मेडिसिन इमिडिएटली, है ना. जब तक, हाँ, जैसे बच्चे हैं, मेरे पास छोटे बच्चे आते हैं तो मैं देती नहीं हूँ उनको मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स तो स्पेशली. तो हम जैसे मोस्टली होता है कोल्ड है तो नेजल सलाइन दे दो, बस आपका नोज क्लियर हो जाएगा, ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगी, बच्चा फीड ले लेता है. अदरवाइज वी डोंट प्रिस्क्राइब इमिडिएटली, तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं मेडिसिन ना. हम भी राइट, राइट. हाँ, छोटे बच्चे मतलब पीडियाट्रिशियन तो कोई नहीं देता होगा जब तक ऑन एंड एवरेज सीरियस कंडीशन नहीं आती कोई, तब तक तो नहीं देते नहीं, हम दैट्स लोग व्हाट आई भी. एम सेइंग प्रभ, कि डॉक्टर्स हम्म. नहीं देते ना, लोगों का ही उतना वैसा हाँ. माइंडसेट बन गया कि कुछ भी हो लेके अरे डॉक्टर हम्म. साहब ये हो हाँ. गया ना, कुछ बता दीजिए, कुछ दे दीजिए बच्चे को, कुछ तो हम्म. दवाई, स्पेशली छोटे सिटीज में जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है कि ये सब चीजें हम्म. ठीक हो सकती है. इट इज नॉट जस्ट ओनली ऑन डॉक्टर्स. ऑब्वियसली अब पेशेंट आएगा तो डॉक्टर को देखना पड़ेगा ना, डॉक्टर तो मना तो नहीं हम्म. कर सकती हम नहीं देखेंगे. सो दैट इज हाउ इट इज. एंड हम्म. अडल्ट्स में स्पेशली ना, घर में वो सब मेडिसिन रखेंगे बेड के हाँ. पास में, कुछ भी हो गया ले लिया. सो राइट, राइट. दैट इज हाउ इट इज. एंड आई विश कि ऐसे डॉक्टर्स और ज्यादा हो जो एडल्ट्स के लिए भी ये करें, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, कि हाँ आपको जरूरत नहीं, जाके खुद ही ठीक हो जाओ. दैट्स व्हाट यू वांट मोर ऑफ, लाइक डॉक्टर. ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट इट, आजकल का इतना एडवांस साइंस हो गया है, मेडिकल चीजें हो गई हैं, कि जो भी इम्पॉसिबल चीजें हैं उससे डॉक्टर्स क्योर करते हैं. दे आर देयर टू सेव लॉट ऑफ लाइव्स, नो डाउट अबाउट इट. बट वी आर टॉकिंग अबाउट एट अ वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल, जहाँ पे जरूरत ही नहीं है आपको अननेसेसरी. दैट इज व्हाट इट इज. ओके. एंड ऑब्वियसली डॉक्टर प्रभ इज इन लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट का बहुत डिफरेंस है. शी ऑल्सो नोज कि कमर्शियल पर्पज से जो चीजें होती है. सो या, दैट इज देयर. बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट हमारे आसपास के जो डॉक्टर्स हैं, दे आर नॉट प्रिस्क्राइबिंग अनटिल एंड अनलेस इफ इट इज रियली नीडेड. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, हु वांट्स टू रीड?
I'll read, Nirjara. Yeah, please go ahead. As I reflect on the complex nature of this repair system and the function of the cell, I know beyond doubt this is no random act of nature. During my first year of medical school, I studied the anatomy and function of eye. As I observed the intricacy of the structure, I realized that this object could never have been the result of accidental chance and random selection. The retina itself is made of 12 intricate layers and billion of specialized cells. The rod and cone in the retina gather the light waves and send these messages to the brain. Our brain interprets these impulses and create our vision in vivid, moving, full color. Just take a moment to look out your nearest window and simply marvel at the gift of sight. There is no accident. It is an ingenious creation. गीतांजलि ऊपर कर दोगे प्लीज हेलो हाँ जी प्रभ। हाँ गीतांजलि मूव कर दोगे एक्चुअली इतना ही दिख रहा था मेरे वाली अच्छा स्क्रीन नहीं पे बता, ओके ओके ओके। हाँ जी हाँ ओके 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 These some thoughts came back to me now as I study the body astonishing immune system and antioxidant defense system. I have no doubt that God is our true healer. I will give thanks to thee, for I am fearfully and wonderful made. David exclaimed, God created a magnificent earth suit for us to take care of our and to nurture. The best defense system getting chronic degenerative disease is provided in our own bodies, not in the drugs prescribed. Biochemical researchers are now able to study the inner working and complexities of each cell in our body. The cell is not simply a shell that contains a soft, consistent gel, as many early evolutionists believe. It is instead filled with sophisticated structure, genetic codes, and the transport system that support life by their elaborate biochemical reactions. When I look at an ink pen, I try to imagine that some plastic, metal, and ink sat around the millions and millions of years and then suddenly, by a chance, accidentally formed this pen. But then I think maybe someone made it. The human body is profoundly complicated creation, and the secrets we are learning about how it works and function make it all the more incredible. Okay, thank you, Prav. So, yeah, what is the doctor saying? Insights, quick. We have got the self-defense mechanism which God has already gifted us to fight the all whatever situation we face or whatever minimal diseases we face, that can be fought by ourselves only. Right. Yes. So, Actually, one thing more it is written that it is not the drugs that cure the body or heal the body, it is the body itself who is doing it. correct. And ठीक है. So, yeah, self-explanatory है. इतना कुछ complicated नहीं है. So, all are clear ना? सबको समझ आ गया रहे? Okay, shall we move forward? ठीक है. Next, who wants to read? I can read. Yeah, go ahead. The devastation of war. In spite of this tremendous defense and repair system inherent in our bodies, damage can still occur. Oxidative stress has the potential to overpower all of these protective systems and cause chronic degenerative diseases.
During periods of particularly high production of free radicals, the defense and repair system can break down and no longer cope with the number of damaged protein, fat, cell membranes, and DNA structures. When not properly repaired, damaged protein can create further problems in cell function. Damaged lipids lead to rigid cell membranes. Oxidized cholesterol often leads to hardening of the arteries, and poorly repaired DNA chains lead to cell mutation as implicated in cancer and aging. Simply stated, when we overwork our built-in antioxidant defense and repair system, significant damage occurs to the body and eventually may lead to any one of a number of chronic degenerative diseases. Biochemical researchers realized years ago that based on their estimates of damaged cell from oxidative stress, we would die quickly from this damage to vital cellular parts if the antioxidant enzymes and compounds were our only means of protection. This is why it is essential that we optimize all of these natural defense systems. Yeah, Shall I thank you, Anurag. हाँ, let's discuss this first. एक बार. So क्या बोल रहे हैं author? जब बहुत ज्यादा कभी फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाए तो बॉडी अपने आप को रिपेयर करने में थोड़ी पीछे हो जाती है, which leads to cholesterol. Right. जो हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो तो फाइट करता ही है, बट जब फ्री रेडिकल्स एक्सेस हो जाता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वो जो ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे बॉडी मतलब वो डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए भी कि हम और फाइट कैसे करें, तो इसके लिए कोई डिजीजेस अकर कर सकती है. राइट. तो आई होप कि आप लोग इसको सिर्फ थ्योरी की तरह नहीं पढ़ रहे हो, बट तो एज दे से अप्लाइड नॉलेज इज पावर. तो जब भी जरूरत हो ये सब नॉलेज अप्लाई करना है अपने आसपास के, अपने फैमिली के लिए, अपने पर्सनल हेल्थ के लिए ना. बिकॉज कल ही मैंने कोट पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेंटेनेंस इज ऑलवेज चीपर देन रिपेयर. तो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, तो दैट इज व्हाट इट इज कि मेंटेन करना और रिपेयर करने में बहुत डिफरेंस है. ठीक है. सेम ना, जैसे अगर कार में एक जगह मान लो बहुत बड़ा डेंट लग जाता है और बार बार उसी जगह डेंट लगता रहे, इमेजिन, तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन तो कार आपकी खराब होगी, टूटेगी. ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हाँ सस्टेन करती रहेगी. सेम बॉडी के लिए भी. इट्स जस्ट दैट जो एक्सटर्नल इंजरी पे अगर हमको बार बार एक ही जगह लगती है तो दर्द होता है ना, वो दिखता है, हमको महसूस होता है, वी कैन फील इट. बट अंदर क्या हो रहा है वो दिखता नहीं है. तो वी आर लाइक कॉम्प्लेसेंट ना कि हाँ ठीक है चल रहा है जैसे भी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. Our best defense. Outside of Eden, our food and our environment have totally changed. Consequently, our bodies are literally under attack. Air and water pollution, the long range effects of smoking, and a faster paced and pressure packed lifestyle add up to stress on our bodies. Even our diet has suffered. Our food supply is significantly deficient in quality nutrients. In 1970, Americans spent about $6 billion on fast food. In 2000, they spent more than $110 billion. Americans now spend more money on fast food than on higher education, personal computers, computer software, or new cars. They spend more on fast food than on movies, books, magazines, newspapers, videos, and recorded music combined. All of these factors mean free radicals are more active and damaging than ever. Nutritional medicine, supplementing our diet with vital antioxidant vitamins and minerals, is the only means we have no supercharge our body's natural defense and immune system.
Nutritional medicine protects our health by enhancing the natural defense system God has created for a polluted world. When we provide the proper nutrients at the optimum levels that the body needs to function, it can do what God intended. Once you understand the concept of oxidative stress and its deleterious effects on our body, you will want to learn how to have victory over it. You will want to know how to have enough antioxidants and their supporting nutrients on board to handle the number of free radicals your body produces. As simple as this sounds, it is a revolutionary concept when it comes to our health. The longer we are able to prevent or delay these chronic degenerative diseases, the longer we are able to enjoy good health. We are all going to die sometime, unless the Lord returns first. But as my friend claimed, I too want to live until I die. Shall I continue or wait? हाँ नहीं, एक बार let's discuss quickly. So you have seen the stats ना, कि अमेरिकन्स का कितना खर्चा जो फास्ट फूड पे हो रहा है, $6 billion. इट्स लाइक बिकमिंग अ बिलियनियर, है ना, उतना नेटवर्थ क्रिएट कर सकता है कोई अपना. एंड दैट दीज आर लाइक स्टैट्स जो 1970 2000 में, आज तो और 25 साल बीत गए. तो सी फास्ट फूड का मतलब हर किसी को ओवर पावर कर रहा है. हायर एजुकेशन, क्या क्या चीजें, सबसे ज्यादा फास्ट फूड में कंजम्पशन है. तो दैट इज व्हाट द बेस्ट थिंग. आई बिलीव कि ना आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि ऑब्वियसली बहुत ही सबको ही पता है कि अगर पेरेंट्स को वो चिप्स खाते देखेंगे और पेरेंट मना कर रहा है कि नहीं नहीं आप मत खाओ, पेरेंट खा रहे हैं, तो बट किड्स आर वेरी स्मार्ट टू ऑब्जर्व दैट. दे विल बी लाइक मम्मा पापा आप क्यों खा रहे हो, पहले आप तो बंद करो. सो वेरी सिंपल, एज सिंपल एज दैट. तो सबसे पहले आई सजेस्ट कि पर्सनली सब अपने घर में अपने फ्रिज को जाके देखो कि क्या क्या चीजें आपने स्टोर कर रखी है ना. जब घर में ही चीजें नहीं रहेंगी तभी वो बच्चे के लाइफस्टाइल और रूटीन से जाएंगी. अदरवाइज घर में जो भी चीजें रहेगी वो एक टाइम के बाद में कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर जाएगी जाएगी. कुछ नहीं खाने को ना, जल्दबाजी में भूख लग रही है, क्रैंकी है, इमोशनल स्ट्रेस है, बिंज ईटिंग, तो ये सब चीजें रहेगी. सो स्टार्ट मेकिंग योर फ्रिज हेल्थी फर्स्ट ऑफ ऑल. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ऑब्वियसली आजकल के टाइम में बिना फ्रिज के रहना पॉसिबल नहीं है. though we don't have refrigerator at our home, whole life I have lived like that. It is a surprise for many कि अरे आपके घर में फ्रिज नहीं है. And that is why most of the junk food I've been away. लाइफ में टेस्ट ही नहीं किया है मैंने ये सब लेज और whatever chips and all that thing. तो sorted. So a lot of people tell कि अरे आपका कभी वेट नहीं बढ़ता, because whole my life we have been away. मतलब एंड आजकल के टाइम में इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, स्पेशली बच्चों को उस एनवायरनमेंट में ग्रो करते देखना. मॉल में लेके जा रहे हो ना आप, घुसते ही वो सब चीजें सबसे पहले रखी जाती हैं ताकि बच्चे वहीं पे मम्मी और पापा को खींच के लेके जाए. वेरी कॉमन थिंग. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एज लाइक दोज हु आर पेरेंट्स कि बच्चे को क्या दे रहे हो. जस्ट बिकॉज बच्चा रो रहा है इसका ये मतलब नहीं है. यू टू स्टार्ट एजुकेटिंग देम. what does your kid like more, eating vegetable or eating junk food? Yeah, of course once in a while it's okay, that's all right ना. हम ऐसे वर्ल्ड में भी नहीं रह सकते कि जहाँ पे completely इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे. but on a regular basis what is your kid doing? अगर वो चीज if you have been successfully able to do it even 50 to 60%, I think मतलब वो बेस्ट चीज है आजकल के टाइम. सो या किस किस के बच्चे यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं? इट्स ओके इफ दे डोंट डू येट. सरगुन. ऑसम. एक वीडियो था ना कि जापान में वो गया था, एक वो जो बता रहा था कि जापान के बच्चों का फेवरेट है राइस, यू नो, एंड ब्रोकली एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड वाज लाइक ऐसा कैसा, मैं कौन सी जगह पे आ गया, बच्चों का फेवरेट ब्रोकली कैसे हो सकता है? सो मतलब इनिशियली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट बचपन से ही अगर घर में आदत डालोगे ना, पहले तो फ्रिज से सारा जंक फूड हटाओ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू. आगे जाके
बड़ा दिक्कत होता है, फिर जब बच्चे समझने लग जाते हैं ना, एंड इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। ओके, किसी को और कुछ ऐड करना है? नितिन, आपकी बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि मैंने सरगुन के मैटर में देखा है कि हमारे घर में कोई जंक नहीं खाता। इवन कि मेरे मम्मी पापा, इवन कि मेरे घर में आज मेरी मैरिज को 10 इयर्स हो गए, ब्रेड नहीं आया। मैंने कभी ब्रेड नहीं देखा मेरे घर में, कभी ब्रेड आया हो ना। तो सरगुन को ये कंसेप्ट पता ही नहीं है कि ब्रेड जैम भी होता है। उसको ये नहीं पता कि पिज्जा भी खाया जाता है। मेरे सिस्टर इन लॉ भी आए थे, कल गए हैं दीदी, कल 5 बजे। तो दीदी भी इतने हैरान हुए, ये पिज्जा नहीं खाती। उसको पता ही नहीं है कि पिज्जा खाना भी होता है, कुछ नहीं पता वो। उसको वेजिटेबल्स का ये है, मम्मा जो भी सब्जी बनी है आटे में गूंद दो, परोंठा बना दो। सारा वो सब्जी आटे में गुंदा के खुद से खाती है, कर्ड खाती है, सब खुद खाती है। क्योंकि हम मेरे घर में, मैंने खुद, मैं और मेरे हस्बैंड कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, कभी नहीं पीते। तो उसको भी नहीं पता, उसको पता ही नहीं कि कोल्ड ड्रिंक जब कोई पीता है तो उसको बोलते ये मम्मा इसको वॉमिट नहीं आएगा, ये इतना गंदा पी रहा है, इतना गंदा है। वो बिल्कुल नहीं खाती जंक। और उसका हमने कंसेप्ट बनाया हुआ है, अगर उसने कुछ लेना भी है, उसको एक दिन में एक चीज मिलेगी, वो कुछ भी ले सकती है। तो उसमें जैसे उसने एक दिन एक कैंडी ले ली, एक दिन लॉलीपॉप ले लिया। और उसने हमने उसका संडे के लिए बिंज ईटिंग रखा हुआ है कि तू संडे को फ्राइज या डोनट में से एक चीज खाती है, वो बस संडे ही मिलेगा। और वो 6 इयर्स की हो गई, उसका प्रॉपर कंसेप्ट बन गया कि पापा कल संडे है तो हम कल खाएंगे, आज सैटरडे आज रहने देते हैं, कल ही खाएंगे हम। मेन यही है कि अगर आप खुद की डाइटरी डाइटरी हैबिट्स ठीक है, तो बच्चे की भी पड़ी जाती हैं डाइटरी हैबिट्स। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि बच्चा कंट्रोल नहीं होता आपसे ना। बिल्कुल, वेरी हैप्पी टू हियर कि आज के टाइम में ना लोगों को इतना शौक लगता है कि ओ ये सब चीजें कैसे कर पाते हो आप, एज इफ कि बहुत बड़ी चीज हो गई ना। ऐसा नहीं है इवन एक्चुअली। निर्जला, हमारे नहीं, घर पे भी सेम मैगी नहीं आती, नायरा को ये हाँ भी नहीं पता मैगी कि कुछ भी नहीं पता, मैगी भी होती हाँ है। हाँ बिल्कुल, उसको बिल्कुल ही नहीं पता ना। ब्रेड, मैंने गीतांजलि दीदी को बोला है कि घर पे पूरियां हमने, याद ही नहीं कि हमने घर पे पूरियां कब बनाई है। उसको उसको पता ही नहीं कि पूरी नाम की भी चीज होती है हमारे। बिल्कुल फ्राइड भी, मैंने बताया चेतन बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो ऐसी हमारी आदत बन गई है। वो भी स्कूल में पास्ता बच्चे लेके आते हैं, तो हम होल व्हीट इसके लिए, वो भी मंथ में वंस इन अ वाइल, तो वो भी बच्चों को देख के। अदरवाइज हमारे घर पे फ्राइड एंड ब्रेड, मैगी कुछ भी नहीं आता। मैं गुड। तो ना निर्जरा, मेन ये है, घूमने जाते हैं मैं तो 3 3 4 4 दिनों के लिए कभी जाते हैं, तो मैं 4 दिन का खाना उसका बना के लेके जाती हूँ घर से। क्योंकि वो होटल में खाती नहीं है कुछ भी, तो मैं सब्जी, चूरी, परांठा सब बना के लेके जाती हूँ। वहां फ्रिज में रख दो, होटल में फ्रिज होता है, जब गर्म करने की जरूरत हो गर्म करवा के उसको खिला दो। गुड, ओके, मीटिंग शायद एंड होने वाला है। सो गीतांजलि, वन पेज वी आर डन ना, आई थिंक वी मूव टू नेक्स्ट पेज। Balance is the goal. When I was a young teenager, the federal government decided to take most of the silver out of our coins. Instantly, all the old coins, which were solid silver, were worth much more than the new coins the government was minting. Many individuals and business began buying up these old silver coins, and of course, we teens gathered up as many solid silver coins as we could find too. I was especially in luck. अनुराधा, वन सेकेंड। गीतांजलि, नेक्स्ट पेज है क्या? 37. नहीं, मीटिंग खत्म हो जाएगा ना अभी, 40 क्यों? मिनट्स ही है इसलिए। हम्म, आई थिंक ये सेकेंड पेज है शायद। सो कल we'll discuss balance is the goal. So yeah, very good discussion, everyone. Let's implement and let's educate. आई थिंक जो भी आप लोगों ने बताया बच्चे के बारे में, जब भी ऐसी कुछ ना चीज होती है, व्हेन योर किड से समथिंग, प्लीज रिकॉर्ड इट। इट इज वेरी गुड कंटेंट, यू कैन सेंड इट टू ऑल योर क्लाइंट्स। कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बता रहे हैं आपको ना, देखो हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वी आर, सो इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू डू ऑल दिस ना। लॉट ऑफ टाइम्स पीपल टेल, वो कैसे करते हैं बच्चे, तो मानते नहीं है ना, ऑल दैट थिंग।